हेलो दोस्तों, मैं हूं ताहिर इकबाल और आज हम बात करेंगे बीएलएलबी एंट्रेंस 2022 की। ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है एएमयू और जामिया के एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस का नाम सुनते ही बच्चे बड़े खौफजदा हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो किस बात को फॉलो करें। हमने ये जो वीडियो बनाई है आपके लिए, ये आपकी राह को आसान करेगी और इसमें हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्टडी मटेरियल्स बहुत हैं, बुक्स बहुत हैं, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से है, आपके क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होंगे, हम वो सारी चीज़ आपको इसमें बताएंगे और आपकी मंजिल को आसान कर देंगे। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें हम आपको हमारे पहले टॉपिक पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मैटर्स देंगे और जो भी आपकी आगे की रिक्वायरमेंट होगी हम सारे टॉपिक्स अपनी आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे और आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपके एंट्रेंस एग्जाम को बहुत आसान बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द वर्ड पॉलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड polis, which means city or state in general form. Aristotle is regarded as the father of science of politics in the West, while Manu is considered to be the first political thinker of India. His famous book Manu Smriti is regarded as the first book of law in India. Later on, it was Kautilya, popularly known as Chanakya, who formed and formulated thinking and gave it a concrete form in the shape of a book named Arthashastra. In Indian context, the first article of our constitution defines our country India, that is Union of States. इसका मतलब कि हम अपने इस टॉपिक में उसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध सिर्फ इंडिया से है। तो आइए चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 AD as traders in the form of East India Company. In 1765, the company, which till now had a purely trading function, obtained the Diwani, such that the rights over the revenue and civil justice of the provinces like Bengal, Bihar, and Orissa. This started its career as a territorial power. In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, जिसको 1857 का गदर भी कहा जाता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, द ब्रिटिश अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This continued until India was granted independence on August 15, 1947. With the independence came the need of constitution, as suggested by Aman Roy in 1934. Constituent Assembly was formed for this purpose in 1946, and on January 26, 1950, the Constitution came into being. There are certain events in the British rule which greatly influenced our constitution and polity. The first, company rule. It started with the year 1773 and last till 1858. This company rule covers four major acts. The first one is Regulating Act of 1773. This act is of great constitutional importance. इसके अंदर हमें तीन बातों का ध्यान रखना है जो उसके मेन पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के. फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम it is recognized the political and administrative functions of the company. तीसरा, it laid down the foundations of central administration in India. अब हम चलते हैं दूसरे एक्ट की तरफ जो है पिट्स इंडिया एक्ट of 1784. The British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as Act of Settlement.
in a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773. The next important act was Pitt's India Act of 1784. We are heading towards the next act, that is Charter Act of 1833. This act was a final step towards centralization in British India. The next act in the series of charter, that is Charter Act of 1853. This was the last series of the Charter Act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark. The next point is Crown Rule. It started with the year 1858 and last till 1947. इस क्राउन रूल के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्ट पास किए गए थे, जिसमें से हम कुछ की बात करेंगे. जो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. This significant act was enacted in the wake of revolt of 1857. The act known as the Act of Good Government of India abolished East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenues to the British Crown. The next important act is Indian Council Act of 1861, 1892 and 1909. After the revolt, the British felt necessity of seeking cooperation of Indians in administration of their country. यहाँ पर इस एक्ट में ये बात समझने वाली है कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में राज करने के लिए यहाँ के लोगों की ज़रूरत पड़ी और उन लोगों ने इसी उद्देश्य के इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किए, जिससे कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुस्तान के लोगों की भी भागीदारी बन सके. In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. जो दूसरा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. On August 20, 1970, the British government declared for the first time that its objective was a gradual introduction of the responsible government in India. The Government of India Act 1919 was enacted, which came into force in 1921, also known as Montagu-Chelmsford reforms. इसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना है कि मॉन्टेग जो नाम है वो उस टाइम इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया. इसी के अंतर्गत हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने हैं. पहला साइमन कमीशन नवंबर 1927, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932, जिसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे. अब हम चलते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट मार्क्ड एज सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules, जिसको हमने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है. और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आज का जो वर्तमान का संविधान है उसमें मेजर पार्ट आपके इसी एक्ट से लिया गया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इसका मतलब है कि अब हम चल रहे हैं आज़ादी की ओर. ऑन February 20, 1947, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, डिक्लेयर दैट
the British rule in India would end by June 30, 1948. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League. Again, on June 3rd, 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया हुआ जो रूल है, फॉर्मेशन है, वो प्रोविंसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, यानी किसी को ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act of 1947. इसके अंदर भी दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज एंट्रिम गवर्नमेंट, यानी सबसे पहली हमारी एक एंट्रिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई जो कि 1946 में हुई, और दूसरा फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947. अब आपके लिए इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. पहला नोट, मेंबर्स ऑफ एंट्रिम गवर्नमेंट वर द मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. वायसराय continued to be the head of the council and Pandit Jawaharlal Nehru was designated as the vice president of the council. Second जो नोट है, the Mughal emperor Shah Alam granted the Diwani to the company after its victory in the Battle of Buxar 1764. Battle of Buxar आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री के पार्ट में भी ये काम आएगा. It was introduced by the British Parliament by the then Prime Minister William Pitt. आपको विलियम पिट का भी नाम याद रखना है. तो इस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये वाला पोर्शन पूरा होता है. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको आगे के लेक्चर्स के लिए या और भी कोई भी जानकारी जो आपको एमयू और जामिया से रिलेटेड हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसकी सारी जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर दी गई है, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके नोट्स के लिए और तमाम जानकारियों के लिए. शुक्रिया.